من الشیطان الرجیم کہڑا ٹھیک آندا جی آ گیا نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم ضلع ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی شوقین حضرات ہیں دوستوں، براہ راست سرزمین ایبٹ آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ آئی فلائنگ پجن کی خوشبو، پنجاب سے پھیلنے والی خوشبو نے میرے ان علاقوں کو بھی معطر کیا ہے۔ جو ہی آپ عری پور، اویلیاں، ایبٹ آباد، مانسر آپ چلے جائیں تو آپ کو ان علاقوں میں آئی فلائنگ پجن کا، اصیل کبوتروں کا، گرے باز کبوتروں کا شوق آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستوں، میرے بچپن کے ایام آج جس محلہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہی گزرے، یہی میں نے اپنی بیسک ایجوکیشن بھی حاصل کی۔ اس کے بعد ہم گجرات مائیگریٹ ہو گئے، تو اکثر میں ایبٹ آباد آتا بھی رہتا ہوں اور میرا ان لوگوں سے وعدہ بھی رہا ہے کہ جب کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو ایبٹ آباد سے بھی شوق کروایا جائے گا۔ تو دوستو، میں اس وقت ایبٹ آباد کا ایک بڑا پرانا نام، بڑے پرانے شوقین، ابھی آپ کی ریکارڈ ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ لالا جی مجھے تقریباً 32 سال اپنے اس شوق میں ہو گئے ہیں۔ جب ان کے گھر کے نزدیک ہی میرے چچا جان کا گھر تھا تو میں نے صبح رابطہ کیا ان سے، تو یہ مجھے لینے آئے۔ یہ میری خوش قسمتی کہ آج میں اپنے علاقہ کے لوگوں میں، میرے علاقہ کے جو شوقین ہیں، آصف بھائی ہیں، فیصل بھائی ہیں، اور اسی طرح یہ جس کا میں نے پرانا نام استعمال کیا، لفظ قدیمی نام کبوتر پروی کے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا میرے خیال میں کہ ایبٹ آباد میں اس کی تان بال، اس کی پودا لگانے والی استاد ذاکر بانی ہے۔ اس کے ساتھ استاد گڈو بھی تھے، وہ آج اپنی نجی مصروفیات کے حوالے سے پنڈی گئے ہوئے ہیں۔ تو دوستوں، میرا آپ دوستوں سے یہ وعدہ بھی تھا کہ انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملا، میں ایبٹ آباد یا اپنے علاقے میں گیا تو میں آپ لوگوں کو وہاں شوق کرواؤں گا۔ میں سب سے پہلے فیصل بھائی کا، آصف بھائی کا، بانی بھائی کا کہ انہوں نے بڑا پیار بھی دیا، بڑی محبت بھی کی۔ تو دوستو، استاد ذاکر بانی جہاں اپنے شوق کی آبیاری کرتے ہیں وہیں انہوں نے اپنا کبوتروں کا کاروبار کا سلسلہ بھی یہاں رکھا ہوا ہے، اور جتنے بھی اہل شوق ایبٹ آباد ہیں ان سے وہ مستفید بھی ہوتے ہیں۔ تو میرا آپ دوستوں سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ ایبٹ آباد سے آپ کو جا کے شوق کروایا جائے گا۔ یہ آصف بھائی کے بھی آپ میں آپ ایک کبوتر دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے نسل کا نہیں پتا، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ میرا سبجیکٹ ضرور ہے۔ یہ کبوتر آپ دیکھیں، اسی طرح بانی بھائی کے ہاتھ میں بھی ایک کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے بڑی آج کبھی امید ہے کہ اہل شوق پنجاب کو میرے اس ڈسٹرکٹ کے، میرے اس آبائی علاقہ سے وہ جو کبوتر دیکھیں گے تو ان لوگوں کے شوق کا بھی انہیں اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کو بھی اب آئی فلائنگ پجن کا کتنا زیادہ کریز ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو باہر کی لوکیلٹی دکھاؤں گا۔ اگر آپ یہاں کی ڈربا دیکھیں ایبٹ آباد کا، تو ایبٹ آباد ایک پیالہ نواز شہر ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑوں نے اسے گھیرا ہوا ہے اور درمیان میں یہ شہر واقع ہے، اور اس شہر میں بھی اب یہ شوق، نواں شہر آپ چلے جائیں، مانسیرہ چلے جائیں تو بتدریج یہ شوق دیکھنے کو ملتا ہے۔ بانی بھائی ٹورنامنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہاں؟ جی ہاں، اس بار ٹورنامنٹ ہوا ہے تو شاگرد میرے پیر بھائی، ان کی شاگرد آگے دیتے ہیں، ساتھوں خان۔ ہاں، تو دیکھیں دوستو، لاہور کی کبوتر پروی کا بڑا نام استاد ملا ندیم تاروں والے، اب ان کی انفیکشن صاحب ایبٹ آباد میں بھی دیکھے ہیں کہ انہی کا شاگرد جو حالیہ جو سیزن ہے، ثاقب بھائی وہ بتا رہے ہیں، ذاکر بھائی کہ انہوں نے وہ ٹورنامنٹ جیتا۔ مدر زہیب صاحب جو راولپنڈی سے ہیں، ان کے شاگرد میرے پیر بھائی۔ تو دوستو، آئیے میں آج اپنا وعدہ بھی پورے کرنے جا رہا ہوں۔ میں رب کریم کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے منہ سے وہ نکلے ہوئے الفاظ آج ان دوستوں میں بیٹھے پورے ہو رہے ہیں۔ تو میں آصف بھائی سے گزارش کروں گا کہ پہلے کبوتر کا وہ آپ کو شوق کروائیں۔
दिखाओ जी इधर आओ जी आसफ भाई, क्लोज करके इधर आओ तुसी ना इस पासे हो। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं साहब, मैं आपको एक पहाड़ी सिलसिला भी नज़र आ रहा होगा। बड़ी गुंजान आबादी है एबटाबाद शहर की, और मैं समझता हूँ कि एबटाबाद शहर की इसकी वजह शोहरत सिर्फ कबूतर ही नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ आर्मी के हवाले से बात की जाए, एजुकेशन के हवाले से बात की जाए, तो मेरे इस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। एनी आओ, हमारा आज मजमून कबूतरों का है, तो मैं आपको कबूतर दिखा रहा हूँ। इधर आओ जी, इसे आओ, इस जगह पे आओ। आसफ भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी, आप ठीक हैं? एबटाबाद से तल्लक है आपका? एबटाबाद से। आप भी ये शौक करते हैं? काफ़ी अरसे से, बचपन काफी अरसे शौक से। है। कैसा पाया यार आपने इस शौक को? बहुत अच्छा शौक है जी। इसमें प्यार मोहब्बत और इस को आगे बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश रही है, और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ रहा है। और बहुत अब ज्यादा हो गए हैं लोग, कितने ऑलमोस्ट कितनी कुछ छतें होंगी यहाँ एबटाबाद में? तकरीबन 70-80 के करीब छतें हैं इधर, जो एबटाबाद शौक सिटी कर रहे में? हैं प्रॉपर। एबटाबाद सिटी में? एबटाबाद सिटी में 40-45 छतें उड़ चुकी हैं उड़ चुकी हैं इस सीजन में। इस सीजन में। अच्छा, ये दोस्तों पहले कबूतर दसो, वैसे छाती दे ना लगे कर। ये दोस्तों आसफ भाई के हाथ में मैं आपको एक कबूतर दिखा रहा हूँ, इसकी आप वज़ाकता देखें, फिर हम आपको इसका शौक भी इंशाल्लाह कराएंगे। आसफ भाई इसकी आंख दिखाएं आप। तो दोस्तों इन ठंडे इलाकों में भी अब आपका ये शौक है हाई फ्लाइंग पिजन का। मैं तो आज हैरान रह गया हूँ कि 70 के करीब 70 के करीब यहाँ लॉट्स मौजूद हैं, शौकीन हजरात यहाँ मौजूद हैं, और बाकायदा तौर पे हर साल वो शौक भी करते हैं। कुंडा दसो इस यहाँ पे इस कबूतर का कुंडा देखें। अब ये गालबन जोड़ों वाले ये कबूतर हैं उस्ताद जाकर बानी के, और अक्सर दोस्तों मैं आप दोस्तों से तज़किरा करता हूँ आखिरी 3 कलियों का, 8वीं 9वीं और 10वीं कली, क्योंकि कबूतर के उड़ने में मैं समझता हूँ जिस तरह हवाई जहाज़ के उड़ने में उसके विंग का जो है बहुत अमल दखल है, इसी तरह कबूतर की उड़ान में भी कबूतर का जो कुंडा है इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। और ये कटा हुआ है कबूतर, इसके बगल के आप पर देखें, ज़बरदस्त पंजे दिखाओ। इधर आओ बानी भाई, सामने रखो ना कबूतर ना, सामने रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है आपके? माशाल्लाह जी, आप ठीक हैं? बहुत इनको भी गाल करें कि उर्दू में करें? इनको जैसे आप चाहेंगे। नहीं उर्दू में करें बात ना, ज्यादा में पंजाब में ज्यादा भी लोग आपको सुन रहे हैं, जी, बाहर जी। भी देख रहे होंगे, कराची वाले भी देख रहे कोई होंगे। मसला ही नहीं। तो बानी भाई कितना अरसा हो गया आपको आपके इस फन मेरी के हवाले शॉप पे मुझे हो गए जी 32 ईयर्स, 32 साल हो गए। साल हो अच्छा, आप भी रेगुलर शौक करते हैं? वैसे शो कर रहे हैं, उड़ाते भी हैं शागिर्द कबूतर? भी हैं, खुद भी उड़ाएं। अच्छा, 2009 तक मैंने शौक किया है, शौक किया है। खुद तो उड़ाएं। किस नाम से टूर्नामेंट यहाँ आप ऑर्गेनाइज करते हैं? पहले तो ऑर्गेनाइज करते रहे हैं अपने नाम से भी, और जो नदीम भाई हमारे फोत हो गए, अच्छा, तो उनके नाम से भी टूर्नामेंट उड़ाए। मेमोरियल टूर्नामेंट हाँ जी। होता है। अच्छा बड़ा अच्छा शौक करते रहे। अच्छा अच्छा। तो यार लाला के नाम का भी टूर्नामेंट, मैं जिंदा हूँ, खैर है जिंदा नेक्स्ट लोगों के नाम इंशाल्लाह आपके नाम से करवा देंगे जी, कोई मसला ही नहीं। कबूतर दिखाएंगे। ये दोस्तों अब आप उस्ताद जाकिर बानी भाई के हाथ में ना इंच कबूतर, वैसे इंच सामने ये आप एक कबूतर देख रहे हैं, ये बानी भाई से ही पूछेंगे कि इसकी सनफ क्या है या कौन सी ब्लड लाइन में है ये कबूतर। बानी भाई ये टेडी कबूतर है, टैडी कबूतर है? टेडी कबूतर है। ये कौन से टैडी? मियां नजीर वाले हैं जो सखी साहब, चौधरी साहब वाले, जो सखी साहब वाले कबूतर हैं टैडी? इसकी आंख आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी कि वाकई चौधरी साहब। ये तो खैर लोग देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ, वो इसका वो बताएंगे सारा भी, सिलसिला कमेंट्स करेंगे। भी करेंगे, लोग भी देखेंगे। तो टूर्नामेंट जो होते हैं वो आप 3-4 सीजन उड़ाते हैं या एक ही सीजन उड़ाते हैं एबटाबाद में? 2 सीजन होते हैं। 2 सीजन। कौन कौन से असू महीनों में भी उड़ते हैं और जेठ मतलब में। सितंबर और मई में?
मई जून मई जून। जी। तो दिखाएं ये कबूतर, इसकी आंख दिखाएं। अब ये दोस्तों, जिन दोस्तों ने उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी, मैं समझता हूँ कबूतर परवरी का एक बड़ा नाम है, और उनके कबूतर जहाँ जहाँ भी गए हैं चौधरी सखी साहब के, उन कबूतरों ने अपना नाम भी कमाया है। और आप ये देख लें कि चौधरी सखी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं और बैसियत कबूतर उनकी यादें हम एबटाबाद में ताज़ा कर रहे हैं। इस तरह मियाँ नज़ीर मरहूम थे, वो दुनिया से चले गए, मगर वो अपनी यादें कबूतरों की सूरत में पीछे छोड़ के गए हैं, और लोग उन्हें याद भी करते हैं। तो ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर वाले टैडी कबूतर ये आपको दिखाए जा रहे हैं। कुंडा दिखाएं बानी भाई, ये वाला कुंडा, इस तरह हो आप, इस तरफ बैंक उठा ये दोस्तों इस कबूतर का कुंडा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जो आखिरी तीनों पर होते हैं, इनकी बनावट आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी। कहीं गोल शेप में होंगे, कहीं नोकीली शेप में होंगे, कहीं इनकी तीनों कलियां बराबर होंगी, कहीं एक कली जो है बाहर वाली बड़ी होगी, सेंटर वाली बड़ी होगी। ये मुख्तलिफ शेपों में आपको नज़र आते हैं। बस बात एक ही है कि लेबॉर्ट्री इनकी जो है वो आसमानी है। तो बानी भाई का जी ये बड़ा खूबसूरत शौक़, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि लाला जी का जो वादा था आप दोस्तों से, वो भी पाया तकमील को पहुँच रहा है। तो मैं गांव में भी जाके कोशिश करूँगा। मेरे गांव में भी लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं माशाल्लाह। इसकी आंख एक दफ़ा फिर देखें आप। एक और कबूतर का भी आपको शौक करवाते हैं। इसी तरह दोस्तों ये बानी भाई का ये आगे उन्होंने अपना दुकान का सिलसिला रखा हुआ है। यही वो अपना शौक भी करते हैं, इसके साथ साथ उनका ये सेल पॉइंट भी है कबूतरों के वाले। ये एक और कबूतर, आप ना कबूतर दसो पहले, ऐसे दीवार ना हो। ये एक और कबूतर, छोड़ दो आख, छोड़ दो फिलहाल, छोड़ो ऐसे। ये एक और कबूतर आपको दिखा रहे हैं। ये भी गालबन उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर वाले कबूतर हैं, टैडी कबूतर हैं उनके, मगर इनकी कलर जो है इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जौंसरे टैडी अक्सर जो है पंजाब में एक लफ्ज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के घर वाले ये जौंसरे टैडी जो कबूतर हैं, ये वो कबूतर में आपको इसकी आँख दिखाएँ। ना लो ना दीवार में ज़रा, बस चलो। ना गंदी दी गल नहीं, वो पता की गल है, पिछे जरा बैकग्राउंड ठीक होवे ना, भावें खैर है, नो प्रॉब्लम। खुला दिखाएं इसको। अब ये दोस्तों, अब उस्ताद बानी ने इसकी आखिरी कली काटी हुई है। अब शायद उन्होंने कोई निशानी लगाई हो। एनी आओ, कबूतर की उड़ान में दोस्तों इसकी बगल का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है। जितने बगल के पर घने, लंबे और ऊपर नीचे होंगे, ज़ाहिर है जिस वक्त हवा अगर क्रॉस करेगी तो कबूतर के उड़ने में की उसकी परफॉर्मेंस में जो है वो फ़र्क होता है। तो ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर वाले जौंसरे टैडी कबूतर। इसी तरह दोस्तों ये बानी भाई ने अंदर अपना ये सारा कबूतरों का आओ ना, आओ ये रहा। आपका नाम? यासर भाई, आप भी एबटाबाद में रहते हैं, शौक करते हैं रेगुलर? कैसा शौक है यार, आप यंग मैन हैं माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा शौक है। अच्छा। इसमें ये है कम से कम नौजवान लड़के फजूल कामों से जो है ना वो बच जाते हैं। अपने परिंदों में मेहनत करते हैं, उधर लगे रहते हैं उनके साथ। तो उसमें ये होता है कि उनकी जो इधर उधर जो आवारागर्दी के एलियों से
उससे बच जाते हैं। अच्छा, तो शौक बहुत अच्छा है। तो आप यार अपनी मामूलात ज़िंदगी में से टाइम निकाल लेते हैं कि ये तो बड़ा टाइम फुल जॉब है, मतलब इसको टाइम, सरमाया, वसाइल, ये सारी चीज़ें दरकार होती हैं, अल्लाह का शुक्र तो है, आप वक़्त दे पाते हैं आप इनको? शुक्र है अल्लाह। तो कौन से आपको वैसे जनरली कबूतर कौन से पसंद हैं? कसूरी हैं, सियालकोटी हैं, फैसलाबाद के कबूतर हैं, कौन से कबूतर? मोतियों वाले, मोतियों वाले, जौंसरे जिन्हें कहते जी हैं। जौन सिरे, अच्छा। और टेडी कबूतर पसंद है, अच्छा, और लाखे। लाखे। जी जी अच्छा, लाखों की यहाँ डिमांड है, लोगों ने रखे हुए हैं यहाँ लाखे। रखे हुए हैं। परफॉर्मेंस भी अच्छी है जी उनकी। अच्छी है। मौसम कैसा होता है यार मई जून में? टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना होता है बड़ा बात? टेम्परेचर इस दफ़ा तो तकरीबन 40 तक गया है। हाँ, इस दफ़ा गर्मी ज़्यादा गर्मी पड़ी। ज़्यादा थी, लग नहीं रहा था कि ये अब्ताबाद है, ऐसे लगता था कि ये पिंडी है। अच्छा, मतलब इस दफ़ा गर्मी तो ऑलमोस्ट पूरा ओवरऑल पंजाब में ज़्यादा गर्मी पड़ी है। हमारा टेम्परेचर भी गुजरात, इस तरह सरगोदा, इन इलाकों में 47 तक गया है जेठ के महीने में, जिसे हम जेठ कहते हैं, मई जून के। तो ये कौन सा कबूतर है आपके हाथ में? ये सर टेडी कबूतर है। इसको दिखाएं ज़रा, वैसे दिखाएं ना, वैसे दिखाएं कबूतर, ऐसे पकड़ के। ये भी दोस्तों टेडी सनफ में ये उस्ताद जाकिर बानी के शागिर्द हैं, वो आपको ये कबूतर दिखा रहे हैं। तो ये कबूतर भी टेडी सनफ में है, ये कबूतर जिसको आप देख रहे हैं। आँख दिखाएं इसे। दूसरे हाथ में। बस ठीक। तो दोस्तों, मेरे पंजाब के मेरे प्यारों दोस्तों, मेरे चाहने वालों, आज ठंडी फ़ज़ाओं से आपको मैं पंजाब के गर्म इलाकों के जो कबूतर हैं, कसूरी कबूतर, इसी तरह बानी भाई को सियालकोटी कबूतर भी है यहाँ, एक सियालकोटी कबूतर भी था। तो इन ठंडे इलाकों में भी आप दोस्तों ये शौक़ जो है बतदरीज, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बात की कि पंजाब से फैलने वाली इस खुशबू ने जहाँ मेरे शुमाली इलाका जात को, पूरी दुनिया को, अरब स्टेट में आप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, जहाँ भी पाकिस्तानी शौकीन गया है वो ये खुशबू अपने साथ वहाँ लेके गया है। इसी तरह एबटाबाद में भी असील कबूतरों की खुशबू आप देख रहे हैं। और माशाल्लाह ये कबूतर भी जो मैंने आपको दिखाए, ये इन लोगों के शौक़ का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब इन्हें समझ भी है, कबूतरों को ये समझते भी हैं, और इनके पास अच्छी नस्लों के कबूतर भी हैं। वेंग दिखाएं इसका कुंडा कुंडा। ये दोस्तों एक्चुअल ब्रीडिंग वाला इनके जानवर हैं। इनके ये मैंने पहले आप दोस्तों से ये बात की कि आपको इन परों की जो शेप है ये गुलाई में भी नज़र आती है, नोकीली भी नज़र आती है, और इसी तरह आपने देखा होगा कि जो बाहर वाले अक्सर पर होते हैं ना, तो अक्सर उस्ताद लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि तलवार नमा पर होना चाहिए। ठीक है, तलवार की शेप जो है वो ज़रा थोड़ी सी इस तरह मेरी उंगली की तरह ज़रा टेढ़ी हो, और इन परों में भी वो खम मौजूद है। इसी तरह इनका नोकीलापन, इनका गोलपन, ये सारी इनकी परवाज़ में ये चीज़ें जो हैं बड़ी अहमियत की आमल होती हैं। ये इसके बगल के पर हैं। पंजे दिखाओ इधर। तो आप दोस्तों ने मेरे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि मेरे सबाई इलाके या बटाबाद का शौक़ जो है वो लोगों तक पहुंच सके। ये बानी भाई आप देख रहे हैं कि वो आप सियालकोटी कबूतरों के कुछ चंद कबूतरों का आपको शौक़ करवाने लगे हैं। फैसल भाई क्या हाल है? ठीक है, इधर आओ बानी भाई। ये दो भाई हैं सियालकोटी। ये दोस्तों ये भानी भाई के हाथ में अब ये दोनों कबूतर आप देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता है ये बटेरे हैं, 35 वाले हैं, कौन से कबूतर? बटेरे ही होंगे। अच्छा, ये बटेरा नस्ल दोस्तों बड़ी मशहूर ज़माना ब्रीड सियालकोट की। खैर मैं खुद तो कबूतर परवर नहीं हूँ, सब्जेक्ट मेरा ज़रूर है, मगर ये है कि जहाँ कसीरी कबूतरों की अफादियत है वहाँ पे सियालकोटी कबूतर भी अपने अंदर एक अफादियत रखते हैं और वो मौजूद है।
یہ بٹیرا نسل کے یہ کبوتر بانی بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں. آج استاد گڈو نہیں ہے, وہ اگر ہوتے تو اس محفل کی رونق جو ہے اور دوبالا ہوتی. یعنی ان کی نجی مصروفیات تھیں. اس کبوتر کا شو ایسے 200 کبوتر ادھر ہوگا نا اس پاس. پتہ کیا ہوتا ہے, جتنی پیچھے بیک گراؤنڈ ٹھیک ہوگا نا کبوتر کا کلر صحیح نظر آتا ہے. اور سمجھ آئی نہیں گل نہیں اما بھی پہلے نہیں اتنا پتا ہونا ہے نا, پھر اساں بھی لوگوں کو سیکھ کے آپ دسو ادھر ہو. اب یہ دوستو, یہ استاد بانی کے ہاتھ میں آپ جس کبوتر کی آنکھ دیکھ رہے ہیں, یہ بٹیرا نسل کا, بٹیرا صنف میں یہ کبوتر آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ تکی حیدر ڈوگر آپ کو دیکھ رہے ہیں. یار یہ گڈو کے ملنے والے ہیں. تکی بھائی بڑی مہربانی. یہ استاد گڈو کے یہ ان کا میرا یہ اپنا آبائی محلہ بھی ہے. اسی محلے میں رہ کے پڑھا ہوں, اور میرے محلے میں یہ رہتے تھے کبوتر پروری کے حوالے سے. ویسے تو ہماری جان پہچان تھی, شروع سے ہی تھی, مگر کبوتروں کے شعبے میں جب آیا تو پھر ان لوگوں سے میرے روابط بھی رہے ہیں. تو آج میں اپنی کچھ نجی مصروفیات تھیں ایبٹ آباد میں, تو مجھے کچھ ٹائم ملا, تو میں نے چاہا کہ آپ کو اپنے اس ٹھنڈے علاقے سے بھی آپ لوگوں کو, پنجاب کے ساتھیوں کو, پاکستان کے بیرون ممالک بہت سارے دوست احباب ہیں, ان کو یہ شوق کرو ذرا. ہاں یہ دوستو آج کل موسم کریز کا ہے, یعنی یہ آپ کو شوق کروا رہے ہیں. یہ بٹیرا صنف کے یہ کبوتر, سیالکوٹی نسل کے یہ کبوتر ہیں. استاد ذاکر بانی نے, ان کا نام ایکچوئل ذاکر ہے, یہ نک نیم ہے ان کا بانی کے نام سے, استاد بانی کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں. پیج پیجن سپورٹس میگزین. یہ دوستو آپ میرے اس پیج کو, پیجن سپورٹس میگزین کے پیج کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیا کریں, شیئر بھی کیا کریں, تاکہ جتنی بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. آج میں ایک دفعہ پھر جن دوستوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے, دوستو میں اپنے آبائی شہر ایبٹ آباد سے براہ راست صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں, اور استاد ذاکر عرف استاد بانی, ان کی ہٹی سے, ان کی دکان سے, ان کے سیل پوائنٹ سے. یہ دوستو یہ ایک دوسرا کبوتر جو ہے یہ بھی بٹیرا نسل میں ہے. یہ بھی میں آپ کو, اس کا بھی میں آپ کو شوق کرواتا ہوں. دکھاؤ. ایکچوئل دوستو یہ آپ نے شیخ محمد افضل مرحوم آف سیالکوٹ, جو کہ استاد امتیاز ہیرا بینا والے ان کے استاد بھی تھے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, وہ فوت ہو گئے ہیں. تو شیخوں والے یہ کبوتر تھے, انہی کے گھر کی یہ بریڈیں تھیں, بٹیرے, کالے منہ والے. اس طرح آپ نے کبوتروں کا نام ان کا ایک سنا تھا, میڈیکل والے, وہ بھی بڑے اچھے کبوتر تھے ان کے. ایک اور بٹیرا آپ کو دکھا. تو دوستو ادھر آؤ نا, سارے ادھر آؤ, ذرا پس لینڈ پہ آؤ نا. تو یہ کچھ دوستوں نے میں سمجھتا ہوں کہ محفل کی رونق انہوں نے دوبالا کیا ہے. یہ بھی شوقین حضرات ہیں بانی بھائی کے ساتھ آ کے, یہ ان کے شاگرد ہیں. اس طرح فیصل بھائی, آصف بھائی, انہوں نے استاد کالے کا پوترا شاگرد ہیں, استاد کالا نوشہرے والے, استاد کالے جی نوشہرے والے, استاد چودھری معین نواز گورنمنٹ پارٹی سے, اس کا مطلب ہے آپ کا اچھا اچھا اچھا. یہ 3 سال سے یہ بھی چیمپئن رہے ہیں, 16, 17, 18 تک. کیا نام کیا آپ کا؟ جواد قریشی. وادی کے نام سے سارے احتباد میں وادی, اچھا نیک نیم ہے آپ کا وادی. چیمپئن رہے ہو.
कौन कौन से साल में आपने यारा मैं 2014 से लेके 2019 तक तकरीबन 5 साल लगातार चैंपियन बनता रहा। अच्छा एबटाबाद शहर से। इसमें काफ़ी सारे बड़े टूर्नामेंट भी थे जो कि 5 दिन 7 दिन के और वनडे के भी 1 दिन के भी टूर्नामेंटों में काफ़ी सारे टूर्नामेंटों में मैंने अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। और जरा कभी माशाल्लाह चौधरी मोइन नवाज साहब से भी मुलाकात हुई है उस्ताद जी से? उनसे उनसे नहीं हुई? और काले उस्ताद से काले उनके उस्ताद घर वो तो जाते उनका ही रहते हैं। शागिर्द है ना, उस्ताद जी का शागिर्द है वो। अच्छा 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 अच्छा। तो आप कब से शागिर्द हुए हैं जी? मैं तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल। रेगुलर शौक करते हैं आप भी? ये शो जारी है जी इनका। अच्छा। तो फैसल भाई आप? अला जी मैंने तो घर में बस बच्चों वाले जोड़ों वाले रखे हुए हैं। मतलब ये सिर्फ परवरी की हद तक आपको शौक है, फील्ड में नहीं आए टेडी अभी? कबूतर बहुत इनके पास। अच्छा अच्छा कसरत अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जी आसम भाई? मैं तकरीबन सन 1991-92 से मुझे बचपन से ही मतलब शौक था कबूतरों का, और मेरी जितनी भी रहनुमाई की है, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ बूझ है, वो उस्ताद जाकर उस्तानी की वजह से। अच्छा अच्छा। इसका मतलब है ये पुराने उस्ताद है ना यहाँ, जिन्होंने पुरानियां मुंडियां आखने सी। सर मैंने जी शौक किया है सन 84 में। अच्छा सन 84 से लेके तो 2005 तक मैंने घर से शौक किया। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा जी कि मैंने नई छत बनाई है इधर शिमला हिल होटल पे, तो वहाँ से फिर हमने बहुत अच्छा शौक किया। 6 7 8 साल लगातार वहाँ से हम जीते भी। अच्छा माशाल्लाह। तो बानी भाई यहाँ क्या कबूतर महंगे बेचते हैं आप? ज़्यादा ला के महंगे? यहाँ भी कबूतर महंगा होता है? बहुत बहुत जी बहुत महंगा। हम पंजाब से गुजरना वाला से लाहौर से सियालकोट वहाँ से बड़े ला- बड़े दूर जाके कबूतर लाए लेके आते हैं। तो इधर सेल किए। अच्छा। तो लोग पैसे खर्च करते हैं बहुत कबूतर? करते हैं। अच्छा अच्छा। मानसेरा एबटाबाद हरीपुर वहाँ से भी आते हैं लोग, रावलपिंडी से भी आते हैं खरीदार। माशाल्लाह। तो ये कौन सा कबूतर है आपके हाथ में जो दिखाने जा ये रहे हैं? कबूतर है जी अपना क्या बोलें इसको जी, कमाल कबूतर है। आप नहीं नहीं कमाल, इसमें क्रास में बना हुआ दिखाएं जरा। ये देखें तो ना ना ऐसे रखो इसको इधर। बड़ा कद काठ वाला कबूतर बहुत है। अच्छा कबूतर, बहुत बच्चा उड़ाया जी मेरे पास इसने। ये बनी भाई कहाँ से लाए आप? ये सियालकोट से। सियालकोट से? सियालकोट से लेकर आए। अच्छा अच्छा। इसकी आँख दिखाएं। आँख देखिए सर, आँख का शेप का हाँ बहुत तेज है जी ये कबूतर। हाथ में कभी पकड़ा नहीं है ना हमने। इधर आओ। उठे करो। अब ये दोस्तों ये सियालकोट से आया हुआ कबूतर है, बना हुआ भी क्रास में है, और मेरा ख्याल है, मेरा जहाँ तक वजदान ये बात कहता है कि ये एक क्रास सियालकोटियों के ही क्रास में बना हुआ है। क्यों जी? जी जी बिल्कुल। या इसमें कसूरी शसूरी भी डले हुए हैं? हाँ जी हाँ। अब आपने थोड़ी देर पहले एक आंख देखी होगी, बटेरे कबूतर की मैंने आपको आंख दिखाई थी, आप लोग देख भी रहे थे। अब इस आंख पे भी आप गौर करें, और उस आंख को भी आपने देखा होगा। कुंडा दिखाएं इसको। अब ये इस कबूतर का आप कुंडा देखें, जबरदस्त। कुंडा दिखाएं इसको।
कहता है बस मुझे हाथ से छोड़ दो। माशाल्लाह जी, ठीक हो गया जी बानी भाई। आओ जी, इधर गए ने, इधर आओ ना उस्ताद जी, इधर आओ ना, इधर पकड़ के रखो, इधर आओ जी बानी भाई, इतने आओ, आओ ना ना, बस ठीक है, बस फिनिश करने हैं, इधर आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। हाँ, इधर ज़रा कैमरा मारो सारे दे वकाल का ना। हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं जी लाला अब्दुल माजिद साहब की कि वो हमारे एबटाबाद शहर को इन्होंने बड़ी रौनक दी है और बड़ी इज़्ज़त बख्शी है इधर आके, तो हम इनके दिल से मशकूर हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि एबटाबाद में आए हैं। ये तो दोस्तों मैं ख़ुसूसी तौर पे फैसल भाई का मैं इंतहाई मशहूर हूँ, उनके हाथ में कैमरा है, क्योंकि ये कैमरा हीरा भट्ट के हाथ में होता है। तो ज़ाहिर है मैं अपनी निजी मामलात के हवाले से आया हुआ था, तो इन्होंने बड़ी मेरे साथ शफकत की, ज़ाहिर है इन्होंने टाइम भी दिया, कैमरा भी थामा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज बड़ी हैरानगी हुई इस बात की कि जब मैंने सवाल किया कि एबटाबाद में कितनी छतें हैं, कितने लोग शोर करते हैं, तो 70 के लगभग। ये छोटा सा शहर है, मुझे याद है कि हम घूम फिर के इस शहर को फिर लिया करते थे, 3 4 5 महलों पे ये मुहित था ये शहर। खैर अब तो आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, और मेरे बचपन के अयाम में जिस महल्ला में खड़ा हूँ, इसी महल्ला में मेरे 5वीं से लेके मैट्रिक तक मेरे दिन गुजरे हैं। और साथ ही मेरा पुराना जो स्कूल है नंबर 2 गवर्नमेंट हाई स्कूल है बटाबाद, और बड़ी किस्ती है उस स्कूल की। आज आप देख रहे हैं कि KPK के आपको जो असम्बली के स्पीकर हैं मुश्ताक गनी, वो भी इसी स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की, और मुझसे एक क्लास वो गालबन सीनियर थे। मैं बानी भाई का, इन तमाम दोस्तों का और तमाम अहले शौक है बटाबाद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह इस वादे के साथ कि आइंदा भी जब कभी लाला जी को वक्त मिला तो इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरी कुछ निजी मसरूफियात होती हैं तो मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे पाता, तो आज इन लोगों की भी मेहरबानी, इन्होंने काफ़ी देर बैठ के मेरा यहाँ इंतज़ार किया। तो आइए दोस्तों, अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपनी इन्हीं अल्फाज के साथ, आपकी दुआओं के साथ एबटाबाद से लाला जी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नीचे ना फिनिश वाले बटन को दबा लें, फिनिश ज़ोर से दबाएगा।